we welcome you all to the first National Guest Lecture on Art of Cross-Examination organized by A to Z Legal Knowledge in collaboration with Ink and Gravel and our NGO partner, Together We Can, We Will. It's about A to Z Legal Knowledge. So it's a student-oriented platform formulated with the purpose of providing legal knowledge or information about hot and current topics going through the entire world in a field of law to the youth for enhancing their skills and help them to gain the knowledge. Although, through this platform, our aim is to spread basic information about legal aspects to the society at large. Moreover, through this platform, we welcome you all to share your knowledge among everyone regarding legal aspects. So before starting the lecture, I would like to give a brief introduction about Advocate Kunal Madan sir. So Advocate Kunal Madan sir is a civil and criminal litigation expert. He always wanted to become one of the best lawyers and was keen on learning and still keen on learning new aspects and strategies to help his clients and his network. During his rigorous internships, he learned core civil and criminal practices, including drafting, cross-examination, arguments, and research work. By the time he was graduate, he knew he can compete with anybody in his profession. He started KMA, that's formerly known as Kunal Madan and Associates Law Office, a litigation firm. Besides being a traditional lawyer, he helps companies and business owners to form a legal strategy aligned with their business strategy. Moreover, he also publishes many research papers. It's over to you, sir, now. Sorry. Yes, sir. So yes. No. So let's start off with brief introduction. Thank you for the brief introduction. I'm sure you gave to me. So I would just like to briefly introduce myself a little bit more about myself. Would that be okay for everyone if I just give a little more introduction about myself? Would that be okay for everyone? Okay. Yeah, yes, sure. Sir. Thank you. So my name is Kunal Madan. I'm married to a lawyer wife and father to a naughty boy. I'm a boxing enthusiast and a budding traveler. Professionally, I had a mid-sized law firm in Delhi with a team of over 20 associates practicing over 13 years. And I have attended many international business seminars and workshops. And I'm also authoring upcoming book, Run Your Company, Not Your Case. So that's a brief introduction about myself. I really acknowledge all of you for being here. And I promise you that you would get your value for your time and that would take your cross-examination skills to next level. And if you are a student, I promise you, you would get a very good idea how to cross-examination, what to keep in mind, what not to keep in mind, what is a cross-examination, and why it is being done, and why it plays a very significant role in the litigation in India. So first of all, I would really like you all to participate with me. It is going to be an interactive session. So just write in the chat box. अभी तक आपको what do you know about the cross examination? कि what is cross examination? And और आप cross examination word से अभी तक क्या symbolize करते हैं as far as litigation is concerned? Just write in the chat box what do you know about the cross examination? अभी आज तक. So please write in the chat box. Please participate with me so that I am able to give you more and more value. Okay. So Evidence Act in a cross-examination, questioning the witness. Good, Vinod. Any more answers? I'm waiting for more answers. Examining the opposite party. Okay, good. A formal interrogation by one party to another party. Cross-examination means asking the relevant question from your opponent. Okay. Interrogation of the witness. Okay. Detailed questioning of someone. Okay, that's good. More answers. I would like to have more answers, more participation from all you guys. Shaking the credit of the witness. Okay. Okay. So
अभी मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ. जो आप सबने बोला दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि क्रॉस एग्जामिनेशन होता क्या है. सो इफ आई मे से एट अ वेरी बेसिक लेवल, क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब जो विटनेस आपके सामने टेस्टिमनी देने आया है कोर्ट को, उसके केस को सपोर्ट करने के लिए आपको उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी फैक्ट्स के ऊपर भी शेक करनी है. जो फैक्ट्स उसके केस के हैं, जो वो सपोर्ट करने आया है, जो टेस्टिमनी दे रही है, उस पर भी आपको शेक करनी है. एंड उसके कैरेक्टर को भी शेक करना है, so that to create a reasonable doubt in the mind of the court that this person is not giving the true answers, and whatever he is saying, it is not correct and it is not as per the facts, and इस witness का जो character है that is also very doubtful. So आपकी questions, आपका क्रॉस एग्जामिनेशन दो चीजों को शेक करने के लिए होना चाहिए. आई एम रिपीटिंग, वन ऑन द फैक्ट्स, अदर ऑन द credibility of the character of the witness. So I am with you. I am with you. Are you getting me? Are you guys getting me? So please type in the chat box character and facts. Character and facts. Please type in the chat box. अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा दो जगह पे आपको फोकस रहना चाहिए आपके क्वेश्चंस का. एक फैक्ट्स के ऊपर और दूसरा विटनेस के कैरेक्टर के ऊपर. सो उसकी जो टेस्टिमनी है, आपको दो तरह से दो पिलर्स को शेक करने, कैरेक्टर एंड फैक्ट्स. प्लीज राइट कैरेक्टर एंड फैक्ट्स ऑन द चैट इफ यू हैव गॉट दिस. ग्रेट ग्रेट. सो अभी हम नेक्स्ट चीज पे फोकस करते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन के की कंसिडरेशंस क्या हैं. सो पहली चीज जो आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में ध्यान में रखनी है, दैट अगर आप डिफेंड कर रहे हो अपने केस को, तो आपको आपका डिफेंस पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि ये फैक्ट्स हैं और ये मेरा डिफेंस है. और सिमिलरली अगर आप केस को डिफेंड नहीं कर रहे, केस को प्रोसीड कर रहे हो एज ए प्लेंटिफ और एज ए कंप्लेनेंट, then you should know the details of your case as well. डिटेल्स इतनी माइन्यूट होनी चाहिए, मिनट टू मिनट, फैक्ट बाय फैक्ट, आपको हर डिटेल की, हर चीज की, किस विटनेस ने क्या कहा, कौन सा डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड है, क्या फैक्चुअल केसेस, क्या फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, और किस किस विटनेस ने क्या क्या फैक्ट स्टेट करे हैं, ये भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए while you are preparing for your cross examination. Then the next point arises, आप जो विटनेस है, आपको उसको भी एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि ये विटनेस का ये एफिडेविट आया है, या ये इसके पुलिस के सामने, इसके विटनेस ने अपना पुलिस के सामने ही हैज रिकॉर्डेड हिज स्टेटमेंट, तो ही मोस्ट प्रोबेबली विल से दिस. सो आपको वो ब्रीफ आइडिया भी होना चाहिए कि ये विटनेस कोर्ट के सामने इस एंगल से टेस्टिमनी देने वाला है. देन आपको विटनेस का ये भी देखना पड़ेगा कि जो विटनेस टेस्टिमनी देने आ रहा है कोर्ट के सामने, हाउ इंटेलिजेंट ही इज, उसकी इंटेलिजेंस लेवल कितनी है और उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है. उसकी बॉडी लैंग्वेज रीड करनी पड़ेगी, कहीं वो घबराया हुआ तो नहीं है, ही इज इंटेलिजेंट इनफ, ही इज कॉन्फिडेंट इनफ, या ओवर कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है. यू रियली हैव टू हैव all these things keeping in your mind while you are preparing for your cross examination. या कोर्ट के सामने आप खड़े हो, आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है. ये आपका बेसिक बैकबोन बनाएगी आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन का. और एक एस्पेक्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन का गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. गोल, आपको आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन का गोल क्लियर होना चाहिए
कि ये मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन है, ये मेरा गोल है कि इस क्रॉस एग्जामिनेशन से, इस विटनेस से मुझे ये चीज चाहिए। सो ये क्रॉस एग्जामिनेशन का जब आपका बैकबोन बन जाएगा, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन का बैकबोन के साथ आपको और कैसे प्रिपेयर कर सकते हो क्रॉस एग्जामिनेशन के, कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं, कैसे क्वेश्चन नहीं बनाने। अभी तक अगर आपको बैकबोन क्लियर हो गई है तो प्लीज राइट बैकबोन ऑन द चैट बॉक्स। सो बैकबोन बनाने के लिए आपको केस क्लियर होना चाहिए, अपना डिफेंस क्लियर होना चाहिए, माइन्यूट डिटेल्स होनी चाहिए, केस फाइल के में जो डिटेल्स नहीं है वो भी क्लियर होनी चाहिए, ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि विटनेस क्या बोलेगा, विटनेस का इंटेलिजेंस लेवल आपको पता होना चाहिए, उसकी एजुकेशन आपको पता होना चाहिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको रीड करनी है कि वो घबराया हुआ तो नहीं है, वो कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट है। और आपको आपके क्रॉस एग्जामिनेशन का गोल क्लियर होना चाहिए कि आपके क्रॉस एग्जामिनेशन का ये गोल है और ये चीज आपको विटनेस से कन्फ्रंट करानी है। सो प्लीज राइट बैकबोन इन द चैट बॉक्स अगर आपको अभी तक ये चीजें क्लियर हुई हैं। राइट, थैंक यू, ग्रेट। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन करना कैसे है और क्रॉस एग्जामिनेशन के आपको फायदे क्या हैं और क्या क्या चीजें आपको प्रिकॉशंस लेनी है। देखिए, जब मैं आपको बोलूं क्रॉस एग्जामिनेशन, तो क्रॉस एग्जामिनेशन एक बड़ा ही क्रूशियल एस्पेक्ट होता है एडवोकेसी का। You can win a very bad case through your cross examination and you can lose a very good case if you conduct a bad cross examination. So ये it's a twin edge। इससे आप अगर सामने वाले का गर्दन काटने जा रहे हो क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू, उसका केस डिस्ट्रॉय करने जा रहे हो, तो हो सकता है अगर गलत क्रॉस एग्जामिनेशन करा, कोई आपने गलत क्वेश्चन पूछ लिया जिसका गलत आंसर दिया, कोई गलत डॉक्यूमेंट पुट कर दिया जिसका विटनेस ने, इंटेलिजेंट विटनेस ने अपनी अपनी सही तरीके से उसको इंटरप्रिटेट कर दिया, देन इट में बैकफायर। सो आपको ये बड़े अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इट्स अ ट्विन एज एंड इट कैन टर्न द टेबल। एंड आई कैन टेल यू, आई कैन टेल यू गाइस कि क्रॉस एग्जामिनेशन इज जस्ट लाइक राइडिंग अ बाइसिकल। आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो, आप जब तक क्रॉस एग्जामिनेशन खुद कंडक्ट नहीं करोगे तब तक आप क्रॉस एग्जामिनेशन सीख नहीं पाओगे। सो द बेस्ट वे टू लर्न क्रॉस एग्जामिनेशन इज टू डू अ क्रॉस एग्जामिनेशन। अब I can understand, being a student or being a very young fellow lawyer, nobody would give you a cross examination, no senior would give you file to cross examine. And because as I told you, it's the most important part, a cross examination can ruin a good case and it can win you a bad case. So अभी क्रॉस एग्जामिनेशन सीखनी कैसे है, करनी कैसे है, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन बेसिक सीखनी कैसे है, जस्ट लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, इट्स अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। सो पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट 5 क्रॉस एग्जामिनेशन यू जस्ट हैव टू सी योर सीनियर, और आप कोर्ट में भी बैठ के देख सकते हो, यू जस्ट हैव टू सी कि लॉयर्स किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपके सीनियर किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चंस ड्राफ्ट कर रहे हैं, किस तरह से विटनेस आंसर कर रहा है, क्या विटनेस की बॉडी लैंग्वेज है, क्या लॉयर्स जो क्रॉस एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज है। सो यू ऑल हैव टू जस्ट 4-5 cross examination, you just have to see, observe, make your notes for the cross examination. Then next to 4-5 cross examination is, अगर आपके कोई सीनियर हैं तो आप उनके साथ मिलके पार्टली क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हो कि सर मुझे भी, मैं भी 2-4 क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। सो सेकेंड स्टेप वुड बी कि आप अपने किसी भी सीनियर के साथ पार्टली क्रॉस एग्जामिनेशन करें, कुछ वो करें और कुछ आप करें। आफ्टर यू हैव 4 to 5 or 6 क्रॉस एग्जामिनेशन, आपने देख लिया कि हाँ जी इस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। थर्ड स्टेप इज, जब 10 से 15 क्रॉस एग्जामिनेशन इस तरह हो गए, तो थर्ड स्टेप इज
कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन करें एंड somebody experience is watching you from behind and telling you कि आप यहाँ पर ये चीज क्वेश्चन इसको ऐसे नहीं इसको ऐसे पुट कर सकते थे, इसको ऐसे नहीं इसको ऐसे पुट कर सकते, या ये चीजें आप और एडिशन कर दीजिए, या इस क्वेश्चन को इस तरह नहीं आप इस तरह फ्रेम करिए. सो दिस इज अ थर्ड स्टेप. एंड आई थिंक जब 15 से 20 क्रॉस एग्जामिनेशन इस तरह से हो जाएंगी, by the end of 20th of cross examination you would be able to conduct a cross examination on yourself. अभी नेक्स्ट स्टेप आता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन करना कैसे है, इफेक्टिव कैसे होगा आपका क्रॉस एग्जामिनेशन. तो उस क्रॉस एग्जामिनेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको मैं कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, यू कैन जस्ट नोट डाउन योर पॉइंट्स. अगर आपकी सिविल केस है, अगर आप सिविल केस के अंदर आपने क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, तो सबसे पहले आपको इंटायर प्लीडिंग्स गो थ्रू करनी पड़ेंगी. प्लेंट क्या कहती है, रिटन स्टेटमेंट क्या कहती है, रीजॉइंडर क्या कहता है, और विटनेस का एफिडेविट क्या कहता है. एंड जो डॉक्यूमेंट्स हैं बड़े माइन्यूटली आपको डेट, सिग्नेचर्स, उसके जो डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स हैं कि कंटेंट्स इन डिस्प्यूट, आपको सारी चीजें एग्जामिनेशन करनी पड़ेंगी. इवन द सिग्नेचर्स भी आपको एग्जामिन करने पड़ेंगे कि किसके कहाँ सिग्नेचर्स हैं, क्या आपका डिफेंस है या क्या आपका केस है. सारे डॉक्यूमेंट्स को जब आप अच्छे से एनालाइज कर लोगे, फिर आप आओगे इश्यूज के ऊपर कि कोर्ट ने क्या इश्यूज फ्रेम करे हुए हैं उस सिविल केस के अंदर ऑन बिहाफ ऑफ द प्लीडिंग्स एंड द डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड. जब आप ये सारी चीजों से फैक्ट से गो थ्रू हो जाओगे, तब आप एफिडेविट की, विटनेस के एफिडेविट की सिविल केस के अंदर एक एक लाइन, एक एक वर्ड के ऊपर रेलिवेंट वर्ड, रेलिवेंट लाइन जो इशू से कनेक्ट हो रही है, उसके ऊपर आप क्वेश्चंस फ्रेम करने शुरू कर दोगे. और क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करोगे आप? तो आप में से कौन किसने आज तक क्रॉस एग्जामिनेशन देखा है और किसने क्वेश्चंस देखे हैं किस तरह से फ्रेम होते हैं? जस्ट टाइप क्वेश्चंस और कुछ मुझे एक हिंट दें सो आई कैन मूव फर्दर कि आप समझ पा रहे हैं मेरी बात या नहीं समझ पा रहे. जस्ट टाइप क्वेश्चंस इन योर चैट बॉक्स. सो अभी अभी जस्ट वील वेट फॉर सम टाइम, वील कम टू द क्रिमिनल पार्ट एज वेल. अभी मैं सिविल पार्ट से शुरू कर रहा हूँ, फिर मैं क्रिमिनल पे भी आऊंगा. somebody is in the chat box asking कि आप क्रिमिनल केसेस में कैसे डिफेंड करेंगे. I come to that. Okay, you watched in mood. तो किस तरह के क्वेश्चंस देखे आपने, किस तरह के क्वेश्चंस देखे आपने? Till now not seen. Okay, so Anil, if you are in litigation and if you're a law student, you must watch the cross examination. That is must for a lawyer. So अभी मैं आता हूँ कि क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं और क्वेश्चंस में आप क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए आपको. देखिए, क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये पिलर्स होते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के. सो देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन मेक. वन, चलो मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे नहीं आता, मैं अभी पिलर्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन पे आता हूँ जो क्वेश्चंस आप. सो आप जब एफिडेविट उठा के क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं, तो आपको बेसिकली चार चीजें ध्यान में रखनी है. उस एफिडेविट की पर्टिकुलर इश्यूज को लेके आपको एक एक लाइन, रेलिवेंट लाइन या रेलिवेंट पैरा पे जब आप क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, तो आपको चार चीजें ध्यान में रखनी है. व्हेन, व्हाट, हाउ, by whom. Just type in the chat box when, what, how, by whom. When, what, how, by whom. When, what, how, by whom. Yes, not why. Why पे नहीं जाना आपने. Why में there is a science behind. Somebody has typed why. तो there is a science behind. हम कभी भी why नहीं पूछते क्रॉस एग्जामिनेशन में. मैं उसमें भी आऊँ. Yes, when, what, how, by whom. So जब भी आप क्रॉस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हर रेलिवेंट पैरा पे, हर लाइन पे, हर वर्ड पे आपको पहले अपने आप से पूछना है
कि जी क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था और किसने किया था। जब आप ये सवाल अपने आप से पूछोगे, देन अपने डिफेंस को या अपने केस को ध्यान में रखते हुए हर एस्पेक्ट पे इन चारों फॉर्म्स को, पिलर्स को आप क्वेश्चंस की फॉर्म में फ्रेम करोगे अपने डिफेंस को और अपने केस को ध्यान में रखते हुए. सो दीज आर कॉल्ड पिलर्स ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन. So just write pillars of the cross examination in the chat box. These are called pillars of the 4 pillars of the cross examination. So next aspect, जब भी आप ये 4 pillars पे आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो, सो देर इज अनदर, जब आप क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो तो ये तो क्वेश्चन हो गए जब आप विटनेस को एक डायरेक्शन में लेके जा रहे हो कि हाँ जी ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, आप वहां पर थे या नहीं, कितनी दूरी से आपने देखा, आप क्या उसको फेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो या नहीं कर सकते. सो ऑल दीज थिंग्स आपको बड़ी डिटेल्ड के अंदर और बड़े तरीके से फ्रेम करनी है सो दैट यू आप विटनेस को एक डायरेक्शन में ले जा पाओ, जिस डायरेक्शन में आप चाहते हो कि विटनेस जाए. फिर लेट्स सपोज कि विटनेस उस डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा, और लेकिन आपका डिफेंस नहीं आ पा रहा क्रॉस एग्जामिनेशन में. जो आप चाहते हो वो डिफेंस उस तरह से नहीं आ पा रहा जिस तरह से आप चाहते हो, इवन आफ्टर these executing these 4 pillars of the cross examination. Then what you have to do, you have to give a suggestion of your defense कि जी ये बात तो ठीक है ना कि उस टाइम पर ये बंदा वहां पे मौजूद नहीं था या आप इसको नहीं देख पाए. ये बात तो ठीक है ना कि वहां जाते जाते आपको 20 से 25 मिनट लग गए और आपने इस अपनी अपनी पुलिस के सामने या अपने एफिडेविट में कहा है कि मैं वहां 10 मिनट में पहुंच गया और आप वहां 25 मिनट में पहुंचे. सो यू हैव टू रियली 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 आर्टिकुलेट द आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन. जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन लीड कर रहे हो, सजेशंस की फॉर्म में भी अपना आप डिफेंस लेके आ सकते हो. इट्स नॉट ओनली द क्वेश्चंस बट समटाइम इट इज आल्सो द सजेशंस व्हिच कैन हेल्प यू इन क्रॉस एग्जामिनेशन. सो अब मैं आता हूँ, ये तो मैंने अभी सिविल केस में आपको बताया कि आप किस तरह से सिविल केस में क्रॉस एग्जामिनेशन में आप प्रिपेयर कर सकते हो, 4 पिलर्स लगा सकते हो. तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रिमिनल केस के अंदर आप किस तरह से क्वेश्चंस को बना सकते हो, क्वेश्चंस को प्लीड कर सकते हो. यही 4 पिलर्स आपके क्रिमिनल केस में भी चल जाएंगे. अभी मैंने आपको बताया, आई जस्ट टोल्ड यू कि यू हैव टू गो थ्रू योर प्लेंट, written statement, rejoinder, issues, and then affidavit. But in the criminal cases, what you have to go through is FIR, complete charge sheet, complete documents, statement under section 161, and the examination of chief in the court. So जब आप ये summarize कर लोगे criminal case के अंदर, then what you have to go through is कि ये सारी चीजें summarize करके आप इन्हीं 4 पिलर्स को क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर कंप्लेनेंट को कॉन्ट्राडिक्ट या डिफेंडेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करने में भी लगा सकते हो. इन क्रिमिनल केसेस आपको मेजर जो ध्यान रखना है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन, इफ यू आर डिफेंडिंग द केस, जो भी केस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बनाया ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस ही हैज कलेक्टेड, what you have to do is you have to find contradictions by way of your 4 pillars of the cross examination. So आपको ये 4 pillars of cross examination दोनों जगह पे हेल्प करेंगी, not only in civil but also in criminal cases. जहाँ तक मर्डर केस की डिफेंड करने की बात है, then really somebody asks a question, you have to really go through the entire evidence और आपको अपना डिफेंस देखना पड़ेगा कि आपका क्या डिफेंस निकल के आता है in the murder case, whether you were there or not, whether आप वहां पर थे या नहीं. आप वहां पे थे तो आपने दूर से विटनेस को, आपने दूर से किसी को मर्डर करते हुए देखा,
या there may be various defenses which may come, या आपने नहीं मारा किसी और ने मारा, you have been falsely impeded. So there are major things, defense, which comes out after you go through the entire file. So next 4 pillars हमारे हो गए. Next, I want to really give you few of examples of my case. I want to just share one small story so that you can come out कि हाँ जी ये क्रॉस एग्जामिनेशन इस तरीके से होता है. So I was defending a narcotics matter. I would not name the matter. I would not name the matter due to my commitment towards my clients. So investigation officer आए मेरे सामने for the cross examination. So what he has shown, what investigation officer shown was that entire investigation और search जो उनकी हुई थी accused की was done within a span of half an hour. So मैंने क्वेश्चन इस तरह से शुरू करे कि हाँ जी आप अपने ऑफिस से कितने बजे निकले. ही सेड कि मैं अपने ऑफिस से 3:30 निकला. फिर मैंने बोला कि आप वहां पे पहुंचे कितने. ही सेड कि मैं वहां 4 बजे पहुंचा, रेलवे स्टेशन पहुंचा. फिर मैंने बोला रेलवे स्टेशन पहुंचने से, गाड़ी लगाने से, आप प्लेटफॉर्म जब आप पहुंचे तब कितनी देर में पहुंचे. ही सेड मैंने 10 मिनट प्लेटफॉर्म ढूंढने में लगाए. फिर मैंने बोला कि आपने वहां पे कोई पब्लिक विटनेस ढूंढा, तो पब्लिक विटनेस ढूंढने में आपको कितना टाइम लग गया. ही सेड अनदर 10 मिनट्स फॉर द पब्लिक विटनेस. फिर मैंने बोला आपको एक्यूज को आइडेंटिफाई करने में और एक्यूज को जब आप सर्च कर रहे थे उससे पहले आपने जो सेक्शन 50 का नोटिस दिया, आपको वो ड्राफ्ट करने में कितने टाइम लग गया. ही सेड अनदर 10 मिनट्स. फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने पहले ये वाला बैग सर्च करा, इसमें कितना टाइम लगा. ही सेड अनदर 10 मिनट्स. फिर मैंने बोला कि आपने सर्च करा या लेडी ऑफिसर ने सर्च करा. उसने कहा लेडी ऑफिसर ने सर्च करा. फिर मैंने बोला कि लेडी ऑफिसर ने सर्च करने में कितनी दूर में लेके गई, वॉशरूम में लेके गई आपके सामने से. ही सेड वॉशरूम में लेके गई. मैंने कहा वहां पे कितना टाइम लगा. ही सेड अनदर 20 मिनट्स. सो व्हेन आई वाज डूइंग अ क्रॉस एग्जामिनेशन, जो इंटायर प्रोसीडिंग थी इन्वेस्टिगेशन की, ये कंक्लूड हुआ कि वो 1.5 से 2 घंटे लगा. लेकिन चार्जशीट में उसने मेंशन करा था कि इंटायर प्रोसीडिंग हैपेंड इन हाफ एन आवर्स टाइम. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप माइन्यूट डिटेल्स में ध्यान दीजिए क्रॉस एग्जामिनेशन के. और इस तरह से आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करना है. एंड मैं अभी यहाँ पर इस वेबिनार में तो अभी इतना ही शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि देयर आर मेनी मोर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जिसमें आई कैन टेक यू टू हाइट्स, बट विद द लिमिटेशन ऑफ टाइम आई वुड लाइक टू conclude this webinar over here. So how many of you just got the value from this seminar? Just type value in the chat box. And I hope कि you have learned something out of it. So with the paucity of time I would, yes, I would have loved to share more cases, but with the paucity of time, I am limiting myself to here. Okay, sir. Thanks a lot, sir, for such a wonderful session with us and giving us such of your precious time. Thank you so much, sir. It was really informative session. Thank you. So now, if anyone have any query, they can ask sir via chat box. If you have any query, you can ask. We have another 5 minutes. Yes, I've done few matters for the murders as well. So, cross-examination is like rebuttal. No, cross-examination is not like rebuttal. It's a detailed cross-examination. Rebuttal can be a part of the cross-examination, but it cannot be a cross-examination. Any questions, if you have, you can type on the chat box.
So guys, you have your attendance link on your in the chat box now. Yes, you can go through, but you need a senior to really go through for the cross examination. You need a senior initially, at least. There are many leading cases, but cross examination you really have to see. You would not be able to learn by only reading it. So to me, seeing is learning. I am not a very bookish kind of a person. To me, seeing is learning. So it has still not reached a cross examination stage. It has still not reached a cross examination stage. So thank you. That would be all from my end. There's no more questions. Thank you Okay, so Anshu. much, sir. Thank you. Thank you. So it's me, Shaurya. Thank you. Yes, sir. So, so thank you, sir. So we also thank our NGO partner Together, who helped us in various ways in conducting. The founder of Together is Ishan Garg. Thank you so much, Ishan Garg.